بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بصحت و سلامت ہوں گے اور آپ اپنی کتاب اردو کی کتاب جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے زعفران۔ پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کتنے مشکل الفاظ ہیں، ان کو ہم نے لکھا ہے اور ان کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، جیسے کہ جا بجا، ہر جگہ، فراموش، بھول جانا، متوجہ، توجہ دلانا، فرائض، فرض کی جمع، کاشت ہونا، کھیتی کرنا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، مقدس، پاک، قدیم، پرانا، کشمیر راجہ، کشمیر راجہ، فن، ہنر، لغت، عرفی عام میں ڈکشنری، یعنی ڈکشنری کو اردو میں بولتے ہیں لغت۔ تھیٹر، وہ بڑا ہال جہاں ڈرامہ اور دیگر تفریح طبق کے پروگرام وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب سامنے رکھیں، ہم مطالعہ کریں گے اس سبق کا۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کالیداس جو ہے یہ ایک مشہور و معروف شاعر ہے، یہ سنسکرت زبان کا شاعر ہے، سنسکرت میں اس نے لکھا ہے، یہ اپنے حساب سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس نے اپنی ان کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا، یعنی جا بجا مطلب ہر جگہ اس نے تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ کالیداس اتنا مشہور و معروف ہے، یعنی اس کے مشہور و معروف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہر شاعر اور ادیب اور مفکروں نے اس کی طرف اپنا توجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ زعفران اگایا جاتا ہے اس کو زعفران زار بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں، اس کے معنی ڈکشنری میں لکھتے ہیں، یعنی زعفران کے معنی وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو، یعنی وہ مقام، وہ جگہ جہاں بہت دور تک زرد پھول اگے ہوئے ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے، یعنی زعفران زار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جا کر انسان بہت دور تک انسان کو ہنسی آتی ہے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے، یعنی یہ زعفران زار جو ہوتا ہے اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے، انسان جو ہی وہاں پہنچتا ہے تو خود بخود انسان کے ہونٹوں پہ ہنسی نظر آتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ کہتے کہ زعفران زار اتنے حسین ہوتے ہیں، جتنے بھی غیر ملکی فوجی یہاں وارد کشمیر ہوئے ہیں، جو ہی انہوں نے ان زعفران زاروں کو دیکھا ہے تو ان کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سر جھکائے ہیں اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ زعفران زاروں کی خوبصورتی میں وہ فوجی اتنے کھو گئے، وہ مست ہو گئے ہیں، ان کو اپنی کام جو ہے وہ یاد تک نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا، کہتے کہ سکندر اعظم کے فوج جو ہی وارد کشمیر ہوئے، جب انہوں نے ان زعفرانوں کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ بہت حیران رہ گئے، وہ ششدر ہو کے رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے، یعنی انہوں نے جو ہی یہ زعفران کے کھیت دیکھے ہیں، ان کے پھول جو ہوتے ہیں بہت ہی حسین و جمیل ہوتے ہیں، جو ہی انہوں نے دیکھے تو وہ قدرت کی انگڑائی، یعنی اللہ کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اللہ نے ان میں
रहनाई बख्शी है, इनमें जो खुसूसियत बख्शी है, खूबसूरती बख्शी है, वो इनसे बहुत ज्यादा माइल हो गए हैं। अबुल फजल ने आईन अकबरी में जाफरान की अजीब तारीफें की हैं। अबुल फजल अकबर के दौर का एक मशहूर और मारूफ अदीब है। अकबर आप जानते हैं, अकबर को आप जानते हैं। अकबर मुगल दौर का एक मशहूर और मारूफ बादशाह है। मुगल दौर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मुगल डायनास्टी, उसी दौर का एक मशहूर और मारूफ बादशाह था। उसका एक अदीब था, उसका नाम था अबुल फजल। उसकी एक मशहूर मारूफ किताब, उसका नाम है आईनी अकबरी। उसी आईनी अकबरी में अबुल फजल ने जाफरान की अजीबो गरीब तारीफें बयान की हैं। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपोर में जाफरान की ये खेतों की खूबसूरती देखने की चीज होती है। कहते हैं अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपोर एक मशहूर मारूफ जगह है कश्मीर में, वहीं पे जाफरान के खेतों की खूबसूरती देखने के लायक होती है। हर जगह से लोग आते हैं और वहां के इन जाफरान के खेतों का लुत्फ उठाने आते हैं। किस महीने में? आपको याद रखना है, अक्टूबर और नवंबर में। पांपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। पांपोर के अलावा हमारे इस वादी कश्मीर में जाफरान की काश्त और बहुत सारी जगहों पे हो रही है। जाफरान के फूलों पर जब चांद की दिल अवेज रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बेशक है तो बस यही जमीन है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। कहते हैं जो ही जाफरान के फूलों पे चांदनी की ये रोशनी पड़ती है तो दिल अवेज रोशनी जब पड़ती है तो कहना पड़ता है कि अगर कहीं पे जन्नत है तो बस इस जमीन में है। इस वादी कश्मीर की तारीफें बहुत सारे लोगों ने की हैं। क्यों की है? यही चीज ऐसे है जैसे जाफरान है, यहाँ की खूबसूरती है और इसको दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों ने या हमारे मुल्क से, हिंदुस्तान से आने वाले लोगों ने बारहा तारीफें की हैं। और जो ही ये चांद की रोशनी इन फूलों पे पड़ती है तो दिल को छू लेने वाला ये समा पैदा होता है। इंसान लुत्फअंदोज हो जाता है। तब इंसान को इस बात का एहसास होता है कि अगर कहीं जन्नत जमीन पे है तो वो यहीं पे है। इसीलिए किसी ने एक मशहूर शायर कहा है, अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त हमें अस्त। और इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। और जब इन फूलों की पत्तियों पे जब ये रोशनी पड़ती है तो वहां पे एक नई ही कैफियत पैदा होती है। जाफरान को बादशाहों का फूल समझा गया है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनतकश तबका का लौह शामिल होता है। जाफरान जो है इसको बादशाहों का फूल समझा जाता है या इसको बादशाहों का फूल कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी तख्लीक में यानी इसको उगाने में, इसकी काश्त करने में जमींदारों को या इसके काश्तकारों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनका खून पसीना होता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यूनानियों के यहाँ जाफरान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। कहते हैं कि यूनानियों के पास इस जाफरान को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी जाफरान के तिलक को मुकद्दस समझा जाता है। यानी हिंदुओं के पास जो हिंदू लोग हैं जिनका मजहब हिंद है, ये हिंदू मजहब के जो लोग हैं वो इसको मुकद्दस तिलक समझते हैं। यानी वो माथे पे जो वो अपना निशान लगाते हैं इसको वो बहुत ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। जमाने कदीम में जाफरान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यानी जमाने कदीम में यानी पुराने जमाने में भी जाफरान को यानी जाफरान का तस्वुर जो है ये बहुत पहले कश्मीर में ही था और इस तस्वुर को कदीम जमाने से भी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह
है कि जाफरान को कश्मीर राजा या कश्मीर राजा भी कहा जाता है। यही वजह है कि जाफरान को लोग कश्मीर राजा के नाम से जानते हैं। जाफरान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और हॉल महक उठते हैं। यानी जाफरान की खुशबू जो है, इसकी जो स्मेल है, इससे यूनान के दरबार, जहां बादशाह, वज़रा, उदबा, मुंशी बैठा करते थे, उस दरबार में भी इसकी खुशबू महसूस की जाती है। और वहां के थिएटर आपको पता है थिएटर किसको बोलते हैं? थिएटर वो बड़ा हॉल जहां ड्रामा और दीगर तफरीह तबा के प्रोग्राम वगैरह पेश किए जाते हैं। यानी वो जगह एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहां पे ड्रामा पेश किए जाते हैं, जहां पे बड़े बड़े प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं, और वहां पर भी इस जाफरान की खुशबू महसूस की जाती है। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में जाफरान का इस्तेमाल होता रहा है। कहते हैं कश्मीर से लेकर यूनान तक इस जाफरान को दवाओं में या दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में जाफरान इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों भी और आज भी कश्मीर के और स्पेन के लोग इस जाफरान को अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कश्मीर का जाफरान जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। जो भी यहाँ पे बाहर के सैलानी आते हैं वो शौक से यहाँ लेते हैं जाफरान, और वो यहाँ पे जाफरान यानी उसका कहवा पीते हैं। मशहूर चीज है कश्मीर का, वो है जाफरान का कहवा। ठीक है। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में जाफरान इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। कश्मीर और यूनान के साथ साथ इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में ही इसकी काश्त शुरू हुई। जाफरान की काश्त एक मुस्तकिल फन है। ये एक मुस्तकिल फन है। इसकी काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार है। यानी जाफरान की काश्त और मुख्तलिफ जितने भी फसल है उनकी काश्त में दो चीजों की फर्क है। एक है अगर हम जैसे हम बाकी बीज बोते हैं, दाल बोते हैं, जैसे ठीक है धान बोते हैं, कश्मीर में बहुत सारे फसल होते हैं, उनका जो जमीन होता है वो हमवार करना पड़ता है। इसके बरअक्स इसका जमीन जो है ये ढलवान होता है। जाफरान की काश्त एक मुस्तकिल फन है। ये एक मुस्तकिल फन है। ये एक मामूली या आम इंसान नहीं इसकी काश्त कर सकता है, बल्कि ये एक मुस्तकिल फन है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। यानी जुलाई और अगस्त में इसके बीज के बल्ब जमीन में डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। ये बीज जो है ये एक बार डालने के बाद इस कई सालों तक चलता रहता है, ये फसल देता रहता है। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। इसके अक्टूबर के महीने में इसके फूल निकल आते हैं। कम से कम ये बीज जो है, ये बल्ब जो है 14 बरस तक ये फसल देता रहता है। फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। जो ही इसके फूल निकल आते हैं और जब हम उसका नजारा देखते हैं तो हमारे आंख के सामने एक हसीन जमील और खूबसूरत बाग नजर आता है। धूप में जाफरान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं। इसके फूल जब तोड़े जाते हैं तब जाके इनको धूप में सुखाना पड़ता है और फिर मुख्तलिफ किस्म के जाफरान तैयार हो जाते हैं। फिर इसे मुख्तलिफ किस्म के जाफरान तैयार हो जाते हैं। शाही जाफरान, मुंगर और लच्छा वगैरह इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। इसकी किस्में आपको याद रखना है, शाही जाफरान, मुंगर और लच्छा, ये इसके मुख्तलिफ किस्में हैं। इसके और भी कई किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के जाफरान की मांग है। हमारे मुल्क में हर किस्म के जाफरान की मांग है, यानी डिमांड है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी जाफरान की तिजारत बढ़ती जा रही है। यानी इसका जो इस्तेमाल है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से कश्मीर में इसकी तिजारत
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं। यानी हुकूमत ने, रियासती हुकूमत ने और मरकज़ी हुकूमत ने इसकी काश्त और इसकी इस्तेमाल की तरफ देखकर हुकूमत ने चाहा कि हम एक ऐसा मंसूबा बनाए ताकि इसके काश्तकारी में इन जमींदारों को आसानी हो और वह ज्यादा से ज्यादा फसल उगाए और वह ज्यादा से ज्यादा नफा कमाए। इसके लिए हुकूमत ने एक मंसूबा तैयार किया है, उसका नाम रखा है नेशनल ज़ाफ़रान मिशन। और यही मिशन हाथ में लेके हुकूमत ने अवाम को बहुत ज्यादा फायदा दिया है ताकि काश्त करने वाले लोग बहुत ज्यादा नफा कमाएं। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीकों से भी काश्त करने की कोशिश की जाए। उम्मीद है कि ये लोग भी साइंसी तरीके से काश्त करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हासिल हो और लोग तरक्की करें। और कालिदास ने अपनी नज़्म में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया है, कहते हैं कालिदास ने जिस हुस्न को, ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया है, इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाए। इस ज़ाफ़रान की खुशबू, असली खुशबू दुनिया तक फैल जाए। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है आपने अच्छे से सुना और समझा होगा।